of ionic compounds. To learn about the properties of ionic compounds, let us perform the following activity. Activity 3.30. Take a samples of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride or any other salt from the science laboratory. What what is the physical state of these salts? Take a small amount of samples on a metal spatula and heat directly on the flame. Repeat with other samples. What did you observe? Did the samples impart any color to the flame? Do these compounds melt? Try to dissolve the samples in water, petrol, kerosene. Are they soluble? Make a circuit as shown in figure 3.8. Insert the electrodes into a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt samples too in this manner. What is your inference about the nature of these compounds? Melting and boiling points of some ionic compounds. Ionic compounds NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2, melting point K 1074, 887, 1045, 2850, 981, बॉइलिंग पॉइंट के 1686, 1600, 1900, 3120, 1685. You may have observed the following general properties for ionic compounds. Physical nature. Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Melting and boiling points. Ionic compounds having high melting and boiling point, see table 3.4. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. Solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. Conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure, but ionic compounds conduct electricity in the molten states. This is possible in the molten state since the electroelectric force of attraction between the oppositely charged ions overcome due to the heat. Thus, the ions move freely and conduct electricity. आयनिक यौगिक गुणों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं. 3.21. विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए. इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर चित्र 3.7 गर्म कीजिए. अन्य नमूनों के साथ ही यह भी क्रिया दोहराइए. क्या आप देखते हैं? क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए.
क्या ये घुलनशील हैं? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार अन्य लवण नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिक की प्रकृति में संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं पतनांक। आयनिक यौगिक गलनांक और पतनांक। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं कवकनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कवकनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशील आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत को चालन करते हैं। वे गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। 3.4 Occurrence of metals. The Earth's crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. are known as minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal, and metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपटलीय धातुओं का मुख्य स्रोत हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सभी सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातुओं का निष्कर्ष कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपटल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं
सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं के, Na, Ca, Mg एवं Al इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि यह कहीं भी तत्वों के रूप नहीं पाई जाती। सक्रिय श्रेणी के मध्य की धातुएं Zn, Fe, Pb आदि की अपक्रियाशीलता मध्य होती हैं। पृथ्वी की भूपटल में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कारण ऐसे होते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क के शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा की गई है। अयस्कों का increments of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc., called Genju. These impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal. This process used for removing the Genju from the ore are based on the difference between the physical or chemical properties of gangues and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. अयस्कों का समृद्धीकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातु में निष्कर्षण पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों में गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वह अयस्क एवं गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं से का उपयोग होता है वह अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। Excreting metals in the activity series. Metals low in the activity series are very unreactive. The oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone. For example, copper HBS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide. Mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating. 2HgS plus 3O heat 2HgO plus 2SO 2HgO heat 2Hg plus O2. Similarly, copper, which is found Cu2S in nature, can be obtained from its ore by just heating in the air. C2Cu2S plus 3O G heat 2CuOS plus 2SO2 2Cu2O plus Cu2S heat Cu6Cu plus SOG. सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं के निष्कर्षण।
सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं की काफ़ी अभिक्रिया होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सिनाबर मरकरी एक है। वायु में गर्म करने पर वह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अधिक गर्म करने पर म्यूरिक एसिड मरकरी में अपरिचित हो जाता है। 2HCl प्लस 3O2 तापन 2HGO प्लस 2SO 2HGO तापन 2Hg प्लस O2। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से CO2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क के अलग किया जा सकता है। 2Cu2 तापन 2Cu2OS प्लस 2SO 2Cu2O प्लस Cu2S तापन 6Cu प्लस SO2।